कहे सुकार गुर कहे सुकार चित मार के चले भाई 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 गुर कहे सुकार कमाए गुर कहे सुकार कमाए तोर कार तोर कार तोर कार बेकार है तोर कार बेकार है एक सच्ची कार एक सच्ची कार एक सच्ची कार लाया एक सच्ची कार लाया और कार और कार बेकार और कार बेकार एक सच्ची कार लाया एक सच्ची कार लाया इक्के खड़े इक्के खड़े करे तेरी जाते इक्के खड़े करे तेरी जाते बिन नामे को न पाया 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 और कार बेकार है एक सच्ची कार लाया एक सच्ची कार लाया गुर कहे सुकार कमाए जियो गुर कहे सुकार कमाए जियो ज्योति से गुर से खगड़ाना ज्योति से गुर से खगड़ा तिस निव निव आँखों पाए जियो आँखां किरपा की आँखां किरपा जिया की ते आँखां किरपा जिया की गुर सज्जन दे आए जियो गुर सज्जन दे ਐਸ ਤੁਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਔਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੈ ਔਂਕੜ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਹੈ ਗੁਰ गुर दे रारे नूं औंकड़ और सज्जण दे नाणे नूं औंकड़ हाईलाइट की है भी खास सज्जण है बाहरला कोई इंसान सज्जण नहीं है
ਗੁਰ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੁਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ ਗੁਰ। ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ पहला ऐसा औलिया, पहला साडा पैगंबर, पहला राहबर ऐसा आया दुनिया ते जिन्हें एक रेवोल्यूशन लिया था भी गुरु की देह नहीं होनी चाहिए। गुरु दे दा उहदे विच ज्ञान आ, वो गुरु होना चाहिए। जे गुरु देह वाला करोगे तो उहदे विच भी तुहाडा जिहड़ा असल गुरु है उहदी बॉडी गुरु नहीं हुंदी। बॉडी साडे वर्गी हुंदी है पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਪੌਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅੰਦਰਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ। ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਡਾਊਨਡ ਅਪੌਨ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਪੀਐਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਸੀਪੀਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਘੜੇ ਮੂਧੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ, ਮੋਜ਼ਸ ਦੀਆਂ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਗੀਤਾ ਦੀ,
बड़े बड़े वेदां सा जो चीज़ भगवान को लभण लई असीं मिल रहा लभियां उहदे च सानूं बड़ियां एक ऐसा साझा तंद फिरदा दिसदा सारियां रिलीजियस बुक्स दे विच असीं हैरान रह गए। कुरान शरीफ असीं स्टडी कर रहे हैं अंग्रेजी दे विच, वो लिखदा जी साडे भी दो चीज़ां है, एक अल्लाह है अकाल पुरख, ਉਹਦਾ अंत ही कोई नहीं है, भगवान है ब्रह्म, और जड़ा रब है ना अल्लाह है, उन्होंने अल्लाहूत ते जपते हैं। अल्लाह है उन्होंने, लेकिन अभ्यासी और रब नूं जोड़न वाला एक विचोला है, वो पावर है, हस्ती है, देह नहीं है। वो जी पावर अंदर मनाउंदी है हस्ती नूं, असीं उहनूं सतगुर कहने हैं, और कुरान शरीफ च उहनूं रब कहे आ। रब तो अल्लाह अलहदा अलहदा चीज़ां उन्होंने करतियां, असीं हैरान रह गए भी साडे भी सतगुर अलहदा है, अकाल पुरख अलहदा है। सतगुर विच जोड़न हारा है, क्योंकि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले अपने नाल नहीं, मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ, और दरगे जड़ा बसीठ है वो सज्जन से ही नाले में जो चलदे नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसन। तो जी पावर है अकाल पुरख ने भेजी दुनिया के भले लई, और सारा कुछ उही करती है पावर। पहला रब बेअंत है, वो तो ज्ञान बाहां खड़ियां कर दित्तियां भी जिहड़ा रब है साडा वो की है, बेअंता बेअंत करती है ज्ञान ना भी दो बेअंत है। पर सतगुरु नूं फड़ लिया जिहड़े विचले विचोले नूं, वो देखियो उहदी डेफिनेशन आ रही है अकाल पुरख की है, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वो वाह वाही है, कमाल है, वो कोई लफ्ज नहीं है, एडा वड्डा अकाल पुरख है। वाह खसम साडा गुरमंत्र बनया ही की है, वाह 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 खसम कहना मैनू को होर बना नहीं सकता इंसान नू, तू बनाया मैनू। जिन रच रचना हम किए, जिन रच रचना हम किए, वाह खसम वाह खसम। गुरु नानक दा गुरु रब आप सी। इस करके जिहड़ा गुर लफज है ये इस खसम नहीं लाया जिहदे पैरों चौंकड़ हो जाए। सज्जन सतगुर है, वो विच विचोला है,
वो मेलन हारा है रब नूं। इस करके सज्जन अलहदा चीज़ है, गुर अकाल पुरख आप है। और सतगुर कौन है? सतगुर है कारण करावन सगल विद सो सते गुरु हमारा। जो भी इस सृष्टि च काम करना है वो सतगुर ने करना है। कोई हस्ती है, पावर है जिहड़ी रब नहीं है, पर रब नूं और अभ्यासी नूं जोड़न वाला एक लिंक है विच। और इसे नूं गीता च कहा भी जिस वेले तुसीं महाभारत दीआं मूवियां देखिया करो, जदों पहली मूवी चलदी उस कमाल दा ज्ञान है। और जे लिखदा भी जदों ऐन अंधकार जुलम वध जांदा धरती दे उत्ते, तद अकाल पुरख वो चीज़ की भेजदा है, तद साधु दुनिया चाहता है। साधु सतगुर नूं कहा। ये सतगुर ऐसा है कि जिस प्राणी को कोई न राखै तिस तू दे आसराओ, सतगुर मूर्ति को बल जा। साधु सतगुर संत इस ज्ञान की देह नहीं आती। वो एक ऐसी पावर है रब ने भेजी मैनकाइंड के सुख ली कि जो ने करना है वो कर रहा इत्थे। जां का ठाकर तू ही प्रभ ताके वड भागा, ओ सहेला सत सुखी। हुण ठाकर ते सतगुर अलहदा होण लगे है। जां का ठाकर तू ही प्रभ ताके वड भागा, ओ सहेला सत सुखी। सब भरम भाव भागा कारण करा सो सतगुरु कौन है? हुण रहाओ दी तो कौन लगी है? वो कहन लगी है भी सतगुर कारण करावन सगदल बेगद सो सते गुरु हमारा। जिन्हें सब कुछ करना है इस दुनिया च, पहला रब का सानू पता नहीं, पहला सतगुर ही असी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। साडे लिए पहला वही पार ब्रह्म पावर है जिन्हें सानू जोड़ना है। और जो सतगुर है उन्होंने गुर लिखिया, क्योंकि सतगुर लफ्ज इन्होंने इकट्ठा कर दिता है। सतगुर लफ्ज इकट्ठा नहीं है, गुर लफ्ज है असल। गुर ईसर गुर 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 साडा असल लफ्ज है, लेकिन ये नाल सत्य एडजैक्टिव है। केड़ा गुर? जेड़ा सदा ही सत्य है। सत्य साडा पुराना वैदिक लफ्ज है। सत्य की है? सत्य सत्य है जिहदी ऑलवेज एग्जिस्ट, जिहदी सदा ही होंद है, जेड़ा सदा ही एग्जिस्ट करता है, ना मरदा है ना जमदा है, इनू सत्य कहते हैं। तो सत्य गुर क्या है? कई बारी जेड़े गुरुआं दी बाणी तो बाद अगर कोई साढ़े को सिक्काबंद चीज़ है ना प्रूव करने लई ये सतगुर की है, वो है गुरुआं दे हुक्मनामे। जिहड़ी 6वीं पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक एमरजेंसी च गुरु हुक्मनामे लिखते सी ना, उत्थों असी चीज़ां बहुत फड़ियां। और हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कई बारी गुर सत्य लिखे आ उल्टा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिखते ने शुरू कर लगे सारे उन्होंने हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आउंदा है सत्य गुर नहीं लिखिया, उन्होंने लिखिया गुर सत्य। जिहड़ा गुर है सज्जन दे ओही सत्य है। और जिहड़ा गुर है इहदी पीढ़ी जुग जुग चलती है। जदों सारे युगां दे विच जदों धरती ते बहुत जुल्म हुंदा है, उदों में सतगुर किसी पूर्ण भगत के अंदर प्रगट होंदा है। गुरु नानक कलयुग का एडा वड्डा भगत होया, उहदे अंदर प्रगट होया। सतयुग का जिहड़ा भगत सी प्रहलाद, उहदे अंदर सतगुर आया, वो पावर आई सी। और सतयुग तो बाद त्रेता आउंदा, त्रेते का भपीखण गुरमुख भगत है। भपीखण जिहा उहदे अंदर ही सतगुर आया सी। और त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता हुण द्वापर जिहड़ा साडा गुआंढी युग है महाभारत का, नाल दा ही युग पिछला हटे हो के रहा, उहदे विच बिदर भगत है जिहदा साग खाधा कृष्ण मार। वो बिदर भगत जिहड़ा साडा गुआंढी युग आ उहदे विच वो भगत सी, क्योंकि उहदे अंदर पूरन वो सतगुरु आ गया सी। इस करके त्रेते का सतयुग का प्रहलाद भगत और त्रेते का भपीखण भगत और द्वापर का जिहड़ा है वो है बिदर भगत। और कलयुग का ये गुरु नानक है, उहदे अंदर पूरे का पूरा परमेश्वर आ गया गुर। इस करके ये जिहड़ी पीढ़ी है, पीढ़ी आ पावे वाली ना समझियो। हुण बाणी च लफ्ज़ आउण लगा पीढ़ी। पीढ़ी है साडे दादे परदादियां दी पीढ़ी। कई बारी पिंडी थां कहते तेरे सत्ते पीढ़ी हो गया, वो मैं लफ्ज़ तां दस रहा। पीढ़ी पीढ़ी आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करते हैं, पीढ़ी नहीं है। ये अद बनाओ उस चीज़ को उच्चा रखने लिए देखते हैं। पीढ़ी जो बाणी का लफ्ज़ है वो है पीढ़ी
दादियां परदादियां की पीढ़ी होंगी भी मेरी पीढ़ी तो आ चल रही। तो इस करके जी सतगुर की पीढ़ी है ये लिखिया बाणी च जोग जोग पीढ़ी चले सतगुर की, रब की नहीं। तो जोग जोग पीढ़ी चले सतगुर की। और कलयुग के 9 जोतां च फिरिया सतगुर। और साढ़े को 9 गुरु है जिहड़ी कि पीढ़ी चलती है। पहला गुरु है, दूसरा, और असी होर प्रूफ देने पीढ़ी का भी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। वो किहड़ा सतगुर है? वो बाबा नानक नहीं है। जिहड़ा जुगा जुगा चों सतगुर है वो ही है, यूनीवर्सल सतगुर है। वो यूनीवर्सल सतगुर की है? क्राइस्ट का वो सतगुर, मोजिस का वो सतगुर। और अकाल पुरख की पावर है जिहड़ा इन्हां भगतां च अंदर आउंदी है। मोजिस का वो सतगुर और क्राइस्ट का वो सतगुर और बैणी भगत जिहड़ा गुरु नानक तो पहला होया हिंदुस्तान च होया, महाराष्ट्र नाल उत्तर सारा बैणी भगत। वो अपने लिखदा सतगुर कहंदा कहो बैणी गुरमुखी त्यावै बिन सतगुर वाट ना पावे। कबीर साहब 120 साल के हो गए और गुरु नानक चढ़ती जवानी च है। ये उन्होंने एज का फर्क से। तो कबीर साहब और गुरु नानक दोनों सतगुरु नूं मनण वाले। कबीर साहब ने बाणी दिती जदों इन्हां दोनों महापुरखों का मगहर देश च बनारस के लागे मेल होया और इन्होंने अपना ज्ञान वटाया। कबीर साहब के ज्ञान की दशा बदल गई। और जिहड़े शब्द कबीर साहब के साढ़े कोल आ किसी हिंदुस्तान च किसी कोल नहीं, कबीर पंथियों कोल नहीं है। क्योंकि उस वेले उन्होंने मेल 120 साल की उम्र च होया जाके। एडी वड्डी भगत सी पर गुरु नानक चढ़ती जवानी से। जदों ज्ञान गुरु नानक उन्होंने आपस सांझ की और उन्होंने फिर लिखिया भूली मालनी है इयों, उथे इहो नहीं है भूली मालनी है इयों सतगुर जागता है देव। सतगुर तो जागता देवता एक, तो तुसी फुल चढ़ाउंदे हो। जहाँ देखियो भी गुरु ग्रंथ साहब ने फुल चढ़ाने ये ठीक है, आदे बना प्यार ना चढ़ाने हैं। पर महाराज कहते मालनी भुली पई है। मूर्ति की पूजा इदा करते सी, फुल चढ़ाते सी, सारा कुछ करते सी और वो अगे लंगर पेंट करना मूर्ति ना। उस शब्द कहता भी जिहड़ा है बरा हे मूर्ति पूजक बंदे आ, जिहड़ा तू मूर्ति अगे प्रसाद रखे हो तो चूहे निकल के खा गए। मूर्ति के मूँह च खे पई। ये शब्द आ रही है जिहड़ा साडी गुरबाणी का शब्द है। तू रहाओ जी तुक लाई, तू किस तरह भुला पिया इन्हां कम्मां च। ये पूजा रब दी है, वो फुल्लां ते खुश है, वो इन्हां चीज़ों ते खुश है, वो तो आप इन्हां चीज़ों नूं बनाउण वाला है। तेरे किया तुझे क्या अर्पू, नामदेव जी कह रहे हैं भी तेरी सारी वैजीटेशन बनाई है मैं तेरे अगे रख रहा। नहीं, सारे बाणियां च भुलेखे कड्ढे है साडे, लेकिन हाली इन्ना ज्ञान नहीं है संगत नूं असीं एजुकेट करना भी कबीर साहब का भी हो सतगुर भूली मालनी है इयों सतगुर जागता है दियो। और उधर बैणी भगत का कहो कबीर कहो ना कहो बैणी गुरमुखे त्यावै बिन सतगुर वाट ना पावे। तो सतगुर जिन्नी चेकर अंदर नहीं आता उन्नी चेकर सानूं कुछ नहीं मिलता। और उस अगे शब्द लेलड़ियां कढ़ रहा गुरु अर्जन पातशाह, वो की कह रहा गुर सज्जन गुर सज्जन गुर सज्जन आ सज्जन नूं मिलना है। गुरु रामदास साहब महला चौथा अपनी बाणी च साफ ही लिख जाता भी मैं रामदास नहीं है। रामदास तो मेरा रब का नाम दास, इन्हों का नाम जेठा सी पहला। गुरु रामदास साहब का नाम असल माँ प्यो ने सारा पहला जेठा सी इन्हों का नाम। ये जवाई सी गुरु अमरदास साहब जी का, पर इन्हों का नाम जेठा सी। और जदों ये भगती कर लग पिया इन्होंने सारी संगत ने या सारिया ने कहना भी ये तो राम का दास ही हो गया, रब का दास, तो उन्होंने नाम पिया। तो रामदास साहब महला चौथा तदे करके महलियां के उत्ते ना नहीं है। साड़ी बाणी की जे लभो ना तो असी साडा गुरुआं दे नाम नूं नहीं मनता। ज्ञान सारा हर एक महला पहला दूजा तीजा चौथा चलेगा ना क्यों नहीं लिखे हुए। इहो जिहा भेद है। इस करके जिहड़े महल्ले चलते हैं महला चौथा लिखदा भई गुरु नानक नूं सारी बाणी च सिर्फ बाबा कहा है, गुरु बाबा। बाकी किसी महल्ले नूं किसी गुरु नूं गुरु बाबा नहीं कहा। गुरु बाबा ना महल्लियां ना गुरु बाबा
जो शब्द खुट बाबा नानका, और जो गुरु बाबे फिटे सो गुरु अंगद फिटे। वो गुरु महला चौथा लिखता गौड़ी राग कहते भी जो गुरु नानक नूं पिठ दे गए फिट गए हो, तो जो गुरु बाबे ना उन्होंने मूँह नहीं लाया, जो गुरु बाबे फिटे सो गुरु अंगद फिटे। गुरु अंगद ना भी उन्होंने परे रखा भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ गुरु नानक नूं पिठ दे गए हो ਉਹਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, कि उन्होंने गुरु अंगद ना आए। गुरु रामदास साहब आप लिख रहे महला चौथा, कहता जो गुरु बाबे फिटे सो गुरु अंगद फिटे। तीजी पीढ़ी विचारिया की हथ ने विचारे, गुरु अमरदास साहब ने विचारिया कि इन्होंने हथ च की है। तीजी पीढ़ी आई है लफ्जों, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, तो तीजी पीढ़ी विचारिया और नहीं पहला आउंदा है तीजी पीढ़ी विचारिया की हथ ना विचारे। पीती गुरु अमरदास ने सोचिए इन्होंने की कसूर है। चौथी पीढ़ी गुर टिकिया जिन निंदक दुष्ट भी था। आ बाणी है गुरु रामदास साहब की। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, अपने आप को नहीं कह सकती भी मैंने टिक्का लाया या मैं गिर राम, कहती वो गुर वो जो जोत स्वरूपी आ रहा से उन्होंने अंदर गुरु नानक का पूरे का पूरा वो जोत सो अर्जन माहे धरी। तो इस करके वो जोत जी अकाल पुरख की सतगुर की जोत सी वो अगले च नख देंगे और नाल अपनी कमाई दे देंगे। इस तरह 9 गुरुओं की कमाई 9वें महल्ले तक आई और वो जोत सतगुरु की है, उन्होंने कमाई बढ़ती गई सारी। इस करके गुरु अंगद साहब तो बाद गुरु अमरदास साहब की जोत आ गई सतगुरु की, और उतों बाद वो जी सी जोत वो गुर चौथी पीढ़ी टिकिया जिन निंदक दुष्ट भी तारे पर अपना नाम नहीं लिखा ना। इस करके गुर जड़ा है ये सते गुर है। साडा गुर कौन है? सत असी किहदे सिख हैं? असी गुरु नानक दे सिख नहीं हैं। वो तो सानू ज्ञान दे के गाइड करने वाला। सारी बाणी गुरु बन के नहीं लिखी। आ वड्डा असी भुलेखा कढ़न लगे हैं संगत चों। सारी बाणी सिख बन के लिखी है, सारी बाणी दास बन के लिखी है, सारी बाणी लाला गोला बन के लिखी है, सारी बाणी चाकर बन के लिखी है। इन्नी गरीबी च शब्द है और सिर्फ रब ने वड्डा मन्निया। इस करके सारी बाणी गुरु बन के नहीं लिखी। जे वो गुरु बनते तो हौमे आ जानी सी शब्द। इस करके वो बिल्कुल इन्नी उन्होंने हौमे जहर सी बाणी दासन दास बन के लिखी है। इस करके सिख कहते हैं असी सिख हैं गुर सत्य गुर का जो सिखा है सो पल के उठे हरनाम ते आवे महला चौथा। तो गुर सतगुर जिहड़ा है असी ओहदे सिख हां। वो जिहड़ा गुर सतगुर है ना ओनू अंदर प्रगट करना ओहदे लई मिलना ही साडा अभ्यास और नाम जपण सिक्खी दा काम है। जिस सिख ना वो अपने अंदर खड़ा कर लिया उन्हें अंदर सतगुरु खड़ा कर लिया। और जहाँ गुरु होए बल तो लख बाहां क्या कीजे, ਜਾਂ सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरीए। सतगुर ये जिहड़ी हस्ती पावर है साडा सारा जोर वर्शिप का साडा सारा नाम जपण का जोर इह ते है भी किते जिहड़ा गुर मेरे संग सदा है नाले उत्थे भी रारे नूं भी जिहड़ा गुर है ये ताकत है रब दी सतगुर दी ये मेरे अंदर आ जाए और वो अंदर प्रगट उन्होंने कहते गुर मेरे संग सदा है नाले उत्थे भी रारे नूं औंकड़ है। और इत्थे भी इस सज्जन नूं मिलण लई अंदर प्रगट कर लई अद्धे हिस्से च शब्द च ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई भी जिन चक्कर वो अंदर नहीं आउंदा मैं रब नूं नहीं मिल सकदा और मैनूं सही मार्ग नहीं पता लगदा। तो महाराज ने कहा गुर सज्जन गुर सज्जन सतगुर का रौला है बाणी इस ज्ञान च। सतगुर 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 वो कहते मेरी एक जी की एक आशा है भी इस मैं मिलते लवां आख्या गुर सज्जन असी रंग बदलते हाँ। गुरु नानक ने अपने अंदर ये गुर किदां खड़ा किया उन्होंने शब्द असी वो शब्द लै रहे हाँ जिहड़ा दास हर एक इंसान जिन चक्कर अपने गिरेबान अपने अंदर नहीं देखता भी मैं की कीता सारी उम्र। कई ऐसे असी अवगण करते हाँ सारे असी पापी हैं सारे हैं लेकिन कई असी ऐसे
ਵੱਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਗਣ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠਾਲੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਤਲੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਕੈਮਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਮਨੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਢੈਂਗੀਆਂ ਕਲਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਟੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤ ਕਾਬਰ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗੁਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਲੇਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਸਨਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾਉਣੇ, ਖਟ ਤੁਰਸ਼ੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ। ਰਸਨਾ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਊ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਾਲਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਵੱਧਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਜੋਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 8 ਪਹਿਰ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
तेरा मन नूं हौसला हो जू। इसे करके सारी बाणी दे शब्द कभी भी पैसीमिस्टिक व्यू नहीं देंगे। कोई भी शब्द सारे गुनाहगारां ने साडे वर्गियां दी बनाए हैं महाराज ने कि हौसला ना हार, डोंट बी पैसीमिस्टिक। फिर जो ऑप्टीमिस्टिक व्यू लै, ऑप्टीमिस्टिक व्यू नूं किया चढ़दियां कलां। इस करके अभ्यासी फिर चढ़दियां कलां च वो फिर तुकां याद करदा, असंख खत्ते खेन बख्शण हारा, नानक साहब सदा दियारा। इस करके भया मनूर हुण लफ्ज आउणगे, असीं वो शब्द शुरू करन लगे हाँ गुरु नानक साहब दा। वो कहदा भी मैं ते मनूर बन गया सी, सुटन योग सी, पर रब ने मुड़ के मैनू सोना बनाता और गल ना ला लिया। वो शब्द शुरू होगी अखीरली तुक पढ़ांगे, फिर असीं रहाओ ते आवांगे। भया मनूर भया मनूर कंचन फिर होवै, भया मनूर कंचन फिर होवै, कंचन फिर हो। कंचन कहते सोने बड़ा मनूर सी। मुड़ के कैमिस्ट ऐसा वड्डा गुरु नानक आया गुनाहगारां दा राखा, वो कहदा फड़ मुड़ के तेन सोना हो सकता, तुम ही रब नूं मिल सकते। भया मनूर कंचन फिर हो। तां शब्द दे डिक्शनरी मीनिंग लैने जरूरी है। शब्द दे पाठ ना कुछ नहीं सरना, इनू गाई जाओगे सारी रात, पर जे मीनिंग ना समझांगे लफ्ज़ां दे, उस भावां दी देश च असीं उडारी नहीं मार सकांगे भी मनूर की होया, ये शब्द कहदा की है। गाई जाओ ना भावें सारी रात, शब्द ना डाह नहीं देनी। इसे करके गुरु नानक दा एक एडा वड्डा पिलर गड्ढिया पिया इस बाणी च अपने सिखां लई भी हे गुरु नानक के गुरसिख पुत्तो, पढ़िया नहीं भेद बुझिया पावना। बाबे नानक दी गल, अकली पढ़ के बुझिए। इन बाणी मैं काहदे लई दित्ती है? बाबा नानक दखणी ओंकार च कहंदा समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, और फिर इत्थे ना छड्ड दे अंत निरंतरे साचा, अंदर दे अंदर बैठा तेरे रब, बाहर नहीं है। समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतरे साचा, इस करके अंदर है, लेकिन इनू बाणी नू जो ज्ञान है इनू समझ और इहदे मुताबिक भगती कर, और तेरा जो गुर है वो अंदर ही प्रगट होना हो, और तेरे मन च आ चीज़ें आनियां। जिहड़ा मनूर तेरा एडा मन नाम नहीं सी जपदा सारा, और चा खेड़ा आ जाएगा। सोना की बनना अंदर मान खेड़िया हरिया बाग। अब बाणी दी तोका है गुरु अर्जन पाश कहते तेरे मन उदास जिहा रहंदे ना, ये ऐसा खिड़ जाएगा जिदा हरिया बाग च खिड़ जाता। मान खेड़िया हरिया बाग, सारी चेंजेस ही तेरी बॉडी ते नहीं होनी, तेरे अंदर मन की हालत बदल जानी है। तो गुरु नानक आ हुण अपने मन नूं ते शब्द ला के कह रहा भी मैं मनूर सी, मैनू हुण मुड़ के सोना बन लगा। भया मनूर कंचन फिर होवै, भया मनूर कंचन फिर होवै, भया मनूर कंचन फिर होवै, भया मनूर कंचन फिर होवै। जे गुर मिले तनेहा, जे गुर मिले तनेहा, गुर सज्जन तेह मिलाए दियो, गुर सज्जन तेह मिलाए दियो। जे गुर मिले तनेहा, जे गुर मिले तनेहा, भया मनूर कंचन फिर होवै, भया मनूर कंचन फिर होवै। जे गुर मिले तनेहा, तनेहा तनेहा लफ्ज़ गुरु नानक दा है। तनेहा कहंदे तेरे तन च मिलना उन्ने, बाहर मंदिरां गुरुद्वारे मस्जिदां च नहीं मिलना उन्ने, तेरे तन दे अंदर होना। उस गुर दी करैक्टरिस्टिक की है कि उन्हें तेरे अंदर होना है, बाहर नहीं उन्हें तेन मिलना। जे गुर मिले तनेहा, तन दे विच, जे गुर मिले तनेहा,
संत या सारे लिशकारे मारते नहीं सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन होए फलां होए बाहर होए और दैट इज इल्यूजन। ये माया पई है उन्होंने, ये सब माया दिखती उन्होंने। जदों गुर मिलेगा अंदर तेरी चेंज आउणगे और अंदर मिलेगा बाहर तेरी सारी बकवास है। नाम दे भगत एडे नडर होए वो कहते काहे रे बकवाद लगाया। तू कहना मैनू फलानी आ झलकां बजियां आ दर्शन होए गो आ। नामदेव जी कहते काहे रे बकवाद लगाया, क्यों बकवास कर रहे हैं? क्यों कि जिन हर पाया तिन ही छपाया। जो पाते हैं वो बोलते नहीं है। जिन हर पाया तिन ही छपाया, ते जिन्हें नहीं पाया वो जरूर बाहर बकवाद करेगा। इस करके असी इस इल्यूजन तो बचना है। कई ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਫਲਾਣ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸੇ ਝਲਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋੜਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਨਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੇਹਾ गुर है वो अंदर आन के की छू मंत्र कर दूगा किदा ओदी काया पलटूगी अंदर। आ देख गुरु नानक कहंदा वो की करेगा, वो कहंदा ओदा एक ही काम है करना। ओदा सब तो वड्डा फंक्शन की है उस गुर दा अकाल पुरख दा। एक नाम अमृत को सेवै, एक नाम अमृत अंदर ही सैटिस्फाइड हो जाना। लफ्ज आने यहाँ ज्ञान दे तृप्त, तृप्त कहते सैटिस्फाइड हो। तू जो एडा घबरिया सी ना कहते तेरे अंदर ही उन्हें तेरी तसल्ली कर देनी। फक एक नाम अमृत तो देवे तो नानक त्रिष्ट से देहा। इस देही दे अंदर ही तेरे सब है कहना। बस कहो कबीर मेरा मन मान्या, कहो कबीर मेरा मन मान्या। पर कबीर साहब कहते मन माने लोग ना भतीजे। कबीर साहब कहते मेरा तो मन मान गया। कहो कबीर मेरा मन मान्या पर मन माने लोग ना भतीजे। कबीर साहब के तोड़ा लाउंदे जिहड़ा साडे लई सारिआं लई ग्रहण करन वाली चीज़ कहते नहीं मनदे ते खात्मा नूं खाण। मेरा की कर लेणगे, मेरा तो मन मान गया। कहो कबीर मेरा मन मान्या, मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए, मैं क्यों ना कर सका। इस करके जिहदा मन मान गया गुरु ना अंदर आन के पहला टेस्ट से देहा तेरी देही दे अंदर तेनू सैटिस्फाइड पहला करना। वो कादे ना एक नाम अमृत को देवा, एक नाम अमृत को देवा। से देहा तो नानक त्रिसठ से देहा। पया मनूर कंचन फिर होए, पया मनूर कंचन फिर होए। जे गुर मिले नाम वो आन के दिंदा है। बाहर सानू शब्द मिलता है जपन। सारी दुनिया इसे भुलेखे च पई है। खास करके एडा वड्डा स्पिरिचुअल सैक्ट है जो सारी दुनिया च फैलिया है वो है राधा स्वामी। बड़े चंगे लोग हैं, परमेश्वर का नाम जपते हैं, पर उन्होंने भी यह भुलेखा है वो सतगुरु देह च मनते हैं। लेकिन शुक्र है इस ज्ञान की जूं जूं लोच चल रही है एडे सियाणे लोग आ उन्होंने हम कहना बंद कर दिता अपने चंडीगढ़ सारे जाके वो जो हूँ उन्होंने गद्दी ते बैठा है गुरु वो कहता मैनू बाबा जी कहा करो, मैंने सतगुरु नहीं कहना। सतगुरु
ਉਹ ਲੋग ਐਡੇ ਨਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਔਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਆਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਖਰੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਭਇਆ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਨੇਵਾ ਜੀ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਨੇਵਾ। ਆ ਨਾਮ ਮਿਲ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰਸੱਜਣ ਦਿਓ ਮਲਾਏ ਜੀਓ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਪੋ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਪੋ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਦੇ ਮੈਨੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ। ਤੋ ਯੋਗ ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭੇਜਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਤੁਕ ਲਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੇ ਹਰਿਆ ਆਵਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਤ ਸਿਲੇਖਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਤ ਸਿਲੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲ ਆਇਆ ਹੇ ਪਾਗਲਾ ਮਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਹਾਵ ਆਇਆ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਹਾਵ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚੇਤਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਿੱਖੀ ਚਿਤ
ही जाते हैं। इंसानियत के तेरे सारे गुण गल गए फड़के, तू रब नूं भुल गया। वो की सी चित चेत सकी पावया, पावया, चित चेत सकी पावया, पावया। क्यों? हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चित सकी गा के ये शब्द लमकदा रखांगे, गां चलदा रखांगे। अगली शब्द चौंकी गुरु नानक का पूरा ज्ञान ला गया भी ये मनूर क्यों बनया। कहते ये अंदर 5 अग्गां बल रही सी, इन्हें इत्थे नहीं बस किया। आम क्रोध लोभ मोह हंकार दे उत्ते होर कोले पाए पाप दे, कोयले पाप पे इदा का भयानक शब्द है, पर अखीर ते मेहर ते ले जाएगा। ये अगली शब्द चौंकी च गुरु नानक का ज्ञान लांगे और हौदी तुक और हीरली तुक जी मेहर दी है वो एंड करिए। चित चेत सकी चित चेत सकी हार बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। कहो चित चेत सकी पावया, चेत सकी पावया। पया मयूर कंचन फिर होवे, पया मयूर कंचन फिर होवे। जी गुर मिले तंधेरा, जी गुर मिले तंधेरा। एक नाम अमृत तेरा, एक नाम अमृत तेरा। कौ नानक कृष्ण सिद्धि, कौ नानक कृष्ण सिद्धि। एक नाम अमृत तेरा, एक नाम अमृत तेरा। कौ नानक कृष्ण सिद्धि, कौ नानक कृष्ण सिद्धि। चित चेत सकी पावया, चित चेत सकी पावया। हे पया मनूर कंचन फिर होवे, पया मनूर कंचन फिर
इस गुर नूं अंदर प्रगट करना है। और काहदे नाल करना है? वो कहना कोई जप नहीं करना, तप नहीं करना, मैं संयम नहीं करना। संयम कहते रहत मर्यादा नूं। कहना मैं कोई संयम नहीं करना। मैं की करना है? नाम जपी, नाम नाम जपी, नाम नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा। मेरा गुरु को बंदा गुरु नहीं है। गुर परमेश्वर नानक भेटियो। कोई को रास्ता रह जाता सिੱਖੀ नहीं हो। और गुरु धारण का जे बाबे नानक के शब्द की असीं परवाह नहीं करते कि साडा गुरु कौन है। असीं झूठियां कहानियां, झूठियां रवायतां सारियां असीं शब्द नूं पिछे सुट्टे आ। शब्द वाल गुरु नानक के हुक्म वाल पिठ है साडी। वाकई जो तुरी आ रही है उहदे वाल साडा मूँह है। शब्द खुश नहीं है, इसते गुरु को खुश नहीं है। इस करके सिੱਖੀ का भला काहदे च होना है? नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा। जप तप संयम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेश्वर गुर दे रारे नूं औंकर, आहो ही गुर सही। गुर परमेश्वर दे रारे नूं औंकर, परमेश्वर गुर परमेश्वर नानक दे कक्के नूं औंकर। इस करके नानक ना काहदे ना भेटिया? साचे शब्द दे। और शब्द दा मैं जप किया परमेश्वर के शब्द का, तो मैनू मिल गया। और उन्होंने जप किदां कीता? अपनी कर्म तू आ लगदे भी इक्के नूं आखी, किते देवते नूं ना आखी। इक्के आख आखै शब्द आखै, इक्के आख आखै शब्द आखै। अर्थ गुरन देखिया, इक्के आख आखै शब्द आखै। अर्थ गुरन देखिया। जिन्नी